विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर आप आइटम नंबर 2 अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर जो श्री जुएल राम जी के नाम से आगे इनके दस्तावेज है जो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 27 श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to income tax. सोगत राय जी हाउस ऑर्डर में नहीं है, आपके पार्टी के बेल में, छोड़िए, चलिए। ये 26 रह गया ना, ये भी करा ये उन्होंने अपोज करना है, बोल दिया नाम। मार्शल मनीष तिवारी, नो। एन के प्रेमचंद्र, आप टेबल पर बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। वो आपकी पार्टी के बोल रहे हैं और आप सदन में हंगामा कर रहे हो। आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आप सदन में हंगामा कर रहे हो। इतना विरोध है क्या आपस में? बोलने दो उनको। बोल रहे हैं। I beg to oppose the introduction of the Income Tax Bill 2025. The Income Tax Act 1961 has been serving its purpose while it was amended every year. The amendments were the result of government decisions, and any new bill would have to suffer the same fate as the government introduced the amendments every year. So no new bill needs to be introduced because the present one has a complex language. The logic that because of complex language there will be increasing cost of compliance could not hold. The basic structure of the income tax remains the same because of its very nature, and no purpose would be served by introducing a new income tax bill to help tax administration and practitioners. Sir, the new law has 622 pages, 526 sections, 23 chapters, and 16 schedules. Is this मनीष तिवारी जी, a simple law? The old law had 298 sections and 145 schedules. So there is no simplification. I oppose the introduction of it. माननीय मंत्री महोदय मोशन लाएं। Sir, I introduce a bill. अब मोशन भी लाएं। Sir, with your permission, sir, 3 members have mentioned about the objections to introduction of this bill. I'd like to say that actually Sri N.K. Premchandran's objection doesn't seem to be correct at all, because, and that's also mentioned in my introductory remarks, the Income Tax Act was originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then as the time went by, year after year, many more sections were added, and as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. So on that objection, I don't think there is a he is right. I don't think he's right. He should understand where the law is today and where it is being reduced. And second, sir, Manish Tiwari also meant, Manish Tiwari's argument was that sections are more now rather than when it was in 1961. That's a point. Then, that I've answered. Then 4,000 amendments have been made from 1961. And all those are being looked at now, being reduced now. So Manish Tiwari's core argument that it contains 536 clauses and has also more number of amendments now, I think he's not even looked into the papers, I'm sorry to say.
लोकसभा की कार्यवाही की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर जेपीसी रिपोर्ट पर हंगामा लगातार जारी। इसको लेकर चर्चा हो रही है, रिपोर्ट पेश हुई, अब इसको लेकर हंगामा जोरदार किया जा रहा है। जेपीसी रिपोर्ट पेश होने पर विपक्ष के कई सवाल हैं और कई सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी हंगामा हुआ था और अब चर्चा। Changes are being made. Number of words have come down by half. Where there was 5.5 lakh words, now it's come down by half. Sections have come down. Chapters have come down. It's in plain, simple English and plain, simple Hindi. And therefore, these are not sustainable objectives. आप मोशन लाएं, माननीय मंत्री जी, मोशन ले आएं। पहले आप Sir, प्रश्न मैं पढ़ता हूं, फिर इसका मोशन लाना आप। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री, विधेयक को पुनर्स्थापित। आप किस पे ना कर रहे हैं आपको पता नहीं है, आप बाहर चले गए थे। I'll make a report by the first day of the next session. I move this. एक बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। Okay, बिल sir. को इंट्रोड्यूस कर दें। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against the name of my colleague, Shri Shripad Yesho Naik, pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy at serial number 9 in the today's revised list of the business. Thank you. ये दोनों करेंगे 25। आइटम नंबर 25, श्री जगिंदर पाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 25 पर मेरे नाम के समूह तथा सूचीबद्ध पर संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के साथियों को अभिलेख सभापति पर रखता हूँ। आइटम नंबर 26, श्री प्रताप राव यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वैश्विक कोविड-19 महामारी का प्रकोप और इसका प्रबंधन के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 123वें और 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। मान्य सदस्यों, आज नियम 37 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। जो माननीय सदस्य अपने नियम 37 के तहत मामले उठाना चाहते हैं, वह अपने अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, आज बजट सत्र के प्रथम चरण का आखिरी दिन है। मुझे खुशी है कि सत्र के दौरान हमने अच्छे वातावरण में चर्चा की है। मुझे आपका पूरा सहयोग मिला है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 17 घंटे और 23 मिनट की सार्थक चर्चा हुई है। इसमें 173 मान्य सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। बजट पर सामान्य चर्चा 16 घंटे 13 मिनट तक चली, जिसमें 170 सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। आप सबके सहयोग से इस सत्र में हमारी प्रोडक्टिविटी लगभग 112% रही है। मुझे आशा है आगे भी आपका इसी तरीके से सहयोग मिलता रहेगा। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 10 मार्च को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हंगामा भी हुआ और लोकसभा में वक्त पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई, जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया। जगदम्बिकापाल ने रिपोर्ट जेपीसी की पेश की। नया इनकम टैक्स बिल भी लोकसभा में पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को पेश किया। विपक्ष ने लोकसभा से वॉक आउट कर लिया।
लोकसभा में वक्त पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई, उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा हुआ जब ये रिपोर्ट पेश हुई थी। और आज ही इनकम टैक्स बिल भी लोकसभा में पेश हो गया और उसकी बात तब हुई थी इनकम टैक्स बिल को लेकर, और आज पेश भी हो गया है। लोगों के लिए अच्छी खबर भी है, लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया है लोकसभा में। जेपीसी एक तरफ तो रिपोर्ट इसकी पेश हुई और दूसरी तरफ नया आयकर बिल भी पेश किया गया, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिला। जेपीसी रिपोर्ट पर भी हंगामा देखने को मिला और जब नया आयकर बिल लोकसभा में